ठीक है. From the basic we will start from the scratch. So okay, so what is this RPA? Anyone have any idea about this? What is this RPA? Why we are learning this technology or anything, whatever you know, please let me know. We have any basic idea you have about RPA, so you can share it with me. Any one of you? RPA means it is a robotic process automation. Fine. Okay. Robotic process automation means what does this mean? What is means robotic process automation? Why we are using this robotic process automation? Look, robotic process automation means we refer a robot rather than a human being to operate the business process by the instruction provided by the human being. Human being means like the developer. Okay, whatever the logic we will implement inside the UiPath Studio, the same logic will be applied. So our main motto is that we are going to replace the human being with the help of robot. Okay, what we will do, we will replace the human being with the help of robot. We are not going to change the business logic. Let's suppose we are launching a website. Okay, from there we are downloading some report and then we are doing some enhancement in that report. Let's suppose we have downloaded this report in form of an Excel sheet and we are doing a lot of enhancement and then we are mailing it to some team. So let's suppose for this what we need to do, we are doing all these things on the basis of manual approach. Okay, but what we are going to do if we are going to implement RPA, so we will remove the human being with robots. Okay, so robot is a blind person. Basically, we can tell that robot is a blind person which is working on behalf of us. रोबोट एक ब्लाइंड पर्सन है जो कि अपने बिहाफ पे काम करेगा. ठीक है, अब ह्यूमन को जो हम करते थे, अब ह्यूमन को हम रिप्लेस कर रहे हैं विद द help of robot. Okay, so for this we can say that the robot is generally a blind person. Whatever the logic we are inserting in the robot, the same thing it will apply. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, we are replacing the man power. What we are replacing? We are replacing man power with the help of robot. ठीक है, basically we can tell that RPA is a software which needs a predefined instruction. ठीक है, जो कि we will implement, which can be implemented with the help of the developer. ठीक है, ठीक है. अब इसमें सबसे बड़ा ये आएगा confusion. The main concern is that some of your guys are thinking that I do not know anything about the coding. So what is the role of coding in RPA? What is the role of coding in RPA? So my question is, let's suppose I don't know anything, I don't know C of the coding and I want to learn the RPA. ठीक है, so how we can learn this technology? What is the role of coding in RPA? क्या इसका रोल रहेगा? अगर हमको कोडिंग नहीं आती है बिल्कुल भी, we are zero in coding, ठीक है, then how we will learn this technology? Any one of you, please. What is the role of coding? ठीक है, if let's suppose we don't know even C of the coding, we don't have anything, any knowledge about the coding, then how can we learn RPA or not? Any suggestion from anyone? Arif bhai? No idea, sir. No idea. ठीक है, no idea. That okay, I'll let you know. ठीक है, if we don't know the coding, ठीक है, then also we can learn the coding. Coding is not necessary for learning RPA. ठीक है, we can tell that coding is not necessary. But whenever we are going for interview, they will ask some coding, whether we know Python, we know Java, we know AIML, or we know .NET and all these things. So why they are asking? So they are asking this thing that so that if they are assigning us any task, so we can apply the logic, ठीक है, in a good manner. In order to apply the logic, ठीक है, they are looking for coding. ठीक है, and the coding is like if we know some coding, we will be a good decision maker, where we have to use if condition, where we have to use else condition, where we use while condition. ठीक है, for each row where we have to use for each row, and different things that where we have to use. ठीक है, and then in order means if you have some coding knowledge, then definitely you will get some benefit. Okay, while when you are giving some interview. Okay, or if we know some coding, then what we can do, we have an activity inside the UiPath Studio. We can invoke this code and directly we can implement our coding. Okay, so let's suppose I will show you, this is the UiPath Studio, how we used to implement this code. Okay, basically we have the different component in RPA. ठीक है, so one component is this, where the developer will develop the code. ठीक है,
This where the developer can develop. ये screen सबको visible है UiPath Studio की? Yes, sir. Yes. Okay. Before that, I'll let you know one more thing. What are the different tools present in RPA? What are the different tools present in RPA? Any one of you, what are the different tools currently present in RPA? Because RPA is a technology. Under this RPA, there are so many tools present in the market. Okay, you might have heard about the UiPath, you might have heard about the Blue Prism, you might have heard about the Automation Anywhere, Pega Automation, WorkFusion, Copix, Chiron, Nice, Links, and OpenSCAM, and there are so many tools present in the market. Okay, so currently we are learning the UiPath. Okay, UiPath is one. Okay, let's suppose Blue Prism is there. After that, Automation Anywhere is there. Then Chiron is there. Okay, then Links is there. Okay, and then OpenSPAM is there. And there are so many tools present in the market. Okay, Pega Automation is there. The Pega Automation is there. Okay. So these are the different RPA tools that we have present in the market. Okay. So currently we are learning the UiPath. So again, what is this UiPath? ये जो मैंने आपको यहाँ पे तीन यहाँ पर दिखाया है, ये तीन टेक्नोलॉजी, ये तीन टूल्स है. तो अंडर RPA we have more than. And then please go on mute. We have class in the 12. I know we can know. 12. We have more than 15 tools currently present in the RPA, but the most popular tools present right now in the market is UiPath, Blue Prism, and Automation Anywhere. So what is this UiPath? Again, we can tell that UiPath. What is this UiPath? UiPath is an RPA tool which is used to automate different applications. Like it could be browser-based application. We can automate browser-based application, web-based browser and web is same. Okay, web-based application, desktop-based application. Okay, we can automate SAP application. We can automate Salesforce application. Okay, Java mainframe-based application, Oracle-based application, and whatever the application. Okay, we want to automate that. We can automate with the help of RPA. Like Excel is there. Excel we can automate. Then PDF we can automate. Email is there. Nowadays you might have seen that sometimes when you are getting email, then at the bottom this will some highlighted thing will be written that you are getting mail. This is an automated mail generated by the robot. It means that you find that this is an automated mail. ठीक है, automated mail भी लिखा रहेगा और sometime it will be written, इतना ही लिखा रहता है generally, sometime it will be written this is an automated mail generated by. It means that पहले क्या होता था, know what the human beings and we are sending them with the help of robot. Okay, basically tools. ठीक है, by using this UiPath we can use like browser based application, desktop based other application. We can automate email, we can automate all this type of application. So this is the okay, and under this UiPath we have different components. All those tasks which is repetitive can be automated. Okay, let's suppose what is my requirement. Sometimes my boss has came in my office. Let's suppose I am working as an HR only, and what he is telling that within 15 minutes, if मुझे 15, he is giving only 15 minutes. Within 15 minutes, what he is saying that I have to circulate 10 resume. Okay, I have to circulate 100 calls for Java. Okay, for Java. Okay, 100 calls for UiPath. What my boss requirement? My boss requirement is that within 15 minutes I have to circulate, means I have to filter, means
filter resume from the Naukri website. ठीक है, I have to filter website from the Naukri.com and then I have to send mail to 100 people of Java developer. ठीक है, and 100 people of UiPath developer and 100 people of Salesforce developer. So can you let me know, is it possible when we will implement all this thing with the help of means human? आप क्या भेज सकते हो कि अगर मैं आपको अभी एक सिनेरियो दूं तो आपको क्या करना है, 15 मिनट के अंदर 100 लोगों को आपको रिज्यूमे भेजना है, 100 लोगों को आपको ये इंटरव्यू के लिए मतलब ये शेड्यूल करना है, जो who is working in Java, UiPath and Salesforce. How you will do? Manually we could not do. ठीक है, लेकिन with the help of RPA we can do. ठीक है, RPA में क्या करेगा, RPA will just automate Naukri.com. ठीक है, and after that it will insert the user ID and password and then once it will enter into the Naukri.com website. ठीक है, it will automatically search Java. ठीक है, Java, who is working on Java. After that it will extract the data. ठीक है, it will extract the data in an Excel sheet. Within I think within 3 minutes it can extract data of 600 people. I have some sample I could show you. Okay. This was a project which I did I think 2 years back. So this what I did, I have logged into the Naukri.com and then what I did, I will just take out the name of the candidate. Currently means I have not that user ID and I have not that access. Let's suppose we have that access also. Then instead of the company name, what I have done over here, I have just extracted the means UiPath job. How many UiPath job is present inside the market currently right now? So what my bot is doing, my bot has done logging the Naukri.com and after that it has inserted the user ID and the password and within 3 minutes, okay, it has extracted all this much data. Okay. The data was spanning in multiple pages and what my robot is doing, it has extracted all the data. And what data we are extracting, there is no limitation that we could extract only company name or experience or CTC or location or IT skill and posting. Okay. So we can extract a lot of things by using this. Okay. I'll show you how we used to extract all these things. Okay. Where we was? Okay. So कैसे करते हैं, एक मैं ये दिखा रहा हूँ how we can launch the browser and all this. ठीक है, ये हम मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि how we will launch the browser and all this. Notepad I will not close. ठीक है, I will show you step by step so that you can understand very easily. Otherwise, if I will run in a one slot, then it is really difficult to understand all this. ठीक है. So this is the UiPath Studio. We have 3 different components in the UiPath. The first one is the UiPath Studio. Okay, UiPath Studio means okay, what is this UiPath Studio? UiPath Studio is a workspace where developer will develop the logic. What developer will do? Developer will develop the logic. He will understand the requirement, and then this is the workplace where we are done with the development. Then it's the part of the robot. It is the responsibility of the UiPath robot is to execute the process. UiPath robot is basically working as external agent which will help the UiPath Studio to execute our this process what we have developed. And after that we have one more component present of the UiPath, that is UiPath Orchestrator. UiPath Orchestrator. So basically UiPath Orchestrator, we can say that it's a web application as well as the central component where we can do n number of things. We can monitor our process, we can schedule our process, we can manage our process, we can delete our process, we can check log by using the UiPath Orchestrator. Let's suppose what is my requirement, I have developed one process and what my client requirement is that he wants to schedule the process in every 3 hours. What he is telling that this process must be run in every 3 hours. Okay, so what we can do, we can schedule. So in order to schedule all this thing, we will use the UiPath Orchestrator over here. Okay, so one of the simple example means I will show you how we used to develop the process. Okay, so we will go to the UiPath Studio. Again, in the UiPath Studio, we have 2 kind of the license. Okay, if you will look about the license, we have 2 type of the license for the UiPath Studio. That is the first one is the community version. Community version is free where this license is provided for the learning purpose only, where we can learn. Okay, this is for learning purpose also only.
And the second one is the enterprise version. So this can be used when we will work on the real time environment. Then only we can work over here. Okay. And then let's go to the UiPath Studio. We will see some basic activity. Okay. This is the UiPath Studio where we have to develop our process. So this is the activity section. Okay. Where we have n number of activity. We have more than 500 activity present over here. Okay. By using this activity, we will launch. Means we can complete our process. Okay. Like let's suppose browser. I will type browser. Okay. We'll see what are the activity present under the browser. Okay. Attach browser. Let's suppose any browser is open. We have to work on it. Then we can use attach browser. Close tab. Let's suppose in Chrome browsers, a particular session is there. Let's suppose Facebook is there, WhatsApp is there, YouTube is running, Google is running, and I don't want to close entire Chrome. I just wanted to close a particular session. Then we will use this close tab. Go back. Let's suppose we want to go back, then we can use go back activity. Go forward. If you want to visit home page, then we can use home page. Open browser. In order to launch a new website, we can use this open browser. Similarly, if you will type over here Excel, so we will get a number of activity, almost all the activity of the Excel, like we append range is there, close workbook is there, we copy sheet is there, delete range is there, Excel application is copy. Let's suppose any Excel is present over here on my desktop, and I want to just read the data of that Excel and I want to save it somewhere. Then we can use Excel application scope, get cell color. Let's suppose in the Excel sheet there are multiple colors. Okay. In the Excel sheet, let's suppose what is in an Excel sheet there are multiple colors, like some red color is there for the defaulter. So we have to extract that color. Okay, extract. We have to identify that says where the color is red and we have to type something. So at that time we can use get cell color. Okay. So remove duplicate rows and all these things will be there. Okay. Right range is there, right cell is there, number of activity is there. Similarly, the one more means by correspondence activity for Excel is the data table. Okay. Add data row. If we want to add a data row, okay. Or if we want to delete something, we can use the remove data row and merge data sort. If we want to do means sort our Excel sheet on the basis of the ascending order or descending order, then we can do all the things. So these all the things there that we could learn after some time. Okay, I'll show you some of the demo how we used to work. Okay, step by step execution of it I will show so that you could understand it. So I have some process. Go to the home pages. Okay. Look how we are doing the thing with the help of RPA. Okay. Kill process. What is this kill process? Kill process is basically, we can tell that kill process is an activity which will terminate the application. Let's suppose the standardization of the RPA is whenever we are running any process. Okay. So at that time, the application which is running in the background, let's suppose Chrome is running, okay, and then Internet Explorer is running, Notepad is running, Excel is running. So everything we have to close. So I'm not going to close Excel as well as Chrome. Okay. Right now, what I have passed over here, my Notepad will be closed automatically. The Notepad is there, that will be closed automatically. The Excel is there, that will be closed automatically. So if we want to terminate the application, then generally we will use the kill process. Okay. Excel. Look, Excel has closed. Since we have passed the argument of Excel, so Excel has closed. If we will pass the argument over here that if we want to close the Internet Explorer, then what we will do, I will just write over here iExplore as well as Chrome or Notepad. The moment I will write Notepad, then it will just try to find out whether the Notepad is running at the background or not. If the Notepad will be running at the background, it will go. If it will not be running, then it will move ahead. It will not go anywhere. After that, we will move ahead. Okay. Let's see what we are doing. This is an open browser. Again, this is an activity. Open browser is an activity which is used to open a browser. Okay.
जब भी हमको क्या करना होगा, कोई भी ब्राउजर को ओपन करना होगा, देन वी हैव टू यूज ओपन ब्राउजर, ठीक है। तो विच ब्राउजर करंटली वी आर यूजिंग, so we will tell in str URL is there. So we are trying to launch www.flipkart.com, ठीक है। if you will write over here www.amazon.com or irctc.com, facebook.com, whatever the thing you will write over here, the same website will be launched by using RPA, ठीक है। look whether it is launching this website or not, look, ठीक है। this has launched www.facebook has been launched, okay। and after that what is our next requirement? This is the maximize window. Maximize window, let's suppose our browser has opened and it is not in the maximize mode, then what will be happen, it will just maximize the browser, ठीक है। else if it is in the maximize mode, it will not do anything, it will exit, ठीक है। अब no, what is my requirement, that I have to log in. Let's suppose currently we are not logging. So before login, what we are doing, we are just taking confirmation for the board whether this page where we want to log in has appeared or not. So in order to take this kind of the confirmation, we will use the element exist. So element exist is an activity which is going to search a particular UI element on the web page. अभी मैं क्या चेक कर रहा हूँ, currently I am checking login, ठीक है। ये login यहाँ पे present है कि नहीं, अगर login present है then only we will click on login and then we will insert the user ID and password, ठीक है। ये चेक किया कि लॉगिन है। अब देखो अभी हमको क्या करना है, वी हैव टू यूज द इफ कंडीशन, हमें यहाँ पे इफ कंडीशन लगाना है। तो नो नीड टू राइट एनी कोड, वी हैव द एक्टिविटी, ठीक है। इफ एक्टिविटी इज देयर एंड व्हाट the logic I have import over here, I have written over here, if this login button is present, अगर login button present रहेगा यहाँ पे तो ये क्या करेगा, it will click on login, ये तुरंत क्लिक करेगा login पे, immediately it has clicked on login, ठीक है। ये login पे क्लिक किया। Now what is my requirement, that I have to write something, ठीक है। रोबोट क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा ये यहाँ पे ये जो विंडो है ये अपेयर हो गया है कि नहीं। if this window has appeared, then only it will pass the email ID and the password and then it will click on login, ठीक है। तो वो हम करेंगे। अगेन वी विल यूज द एलिमेंट एक्सेस, वी शुड यूज द एलिमेंट एक्सेस, बट फॉर द लर्निंग पर्पस वी आर नॉट यूजिंग द एलिमेंट एक्सेस ओवर हियर। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, वहां पे उस सेक्शन पे सबसे पहले जाके ये जो आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे पास किया है, इट हैज रिटन ओवर हियर एंड आफ्टर दैट इट विल इंसर्ट द पासवर्ड, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पे पासवर्ड डालेगा। तो दिस टाइप इनटू, वी हैव एन एक्टिविटी टाइप इनटू एक्टिविटी, क्लिक करना है हमें तो नो नीड टू राइट द कोड, जनरली वी कैन जस्ट यूज द क्लिक एक्टिविटी। हमारे पास एक्टिविटी सेक्शन में वी हैव मोर देन 500 एक्टिविटी ओवर हियर। तो हम क्या करेंगे, उस एक्टिविटी को यूज करेंगे और डायरेक्ट हम यहाँ पे बस सीक्वेंस में लगाने के लिए आना चाहिए, दैट नॉलेज वी शुड हैव, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने पासवर्ड देना है, ठीक है। पासवर्ड देने के लिए वी हैव गेट पासवर्ड एक्टिविटी ओवर हियर, ठीक है। मैंने ये क्या किया, यहाँ पे आई हैव इंसर्टेड द पासवर्ड, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वंस द पासवर्ड विल बी इंसर्टेड, वी विल व्हाट वी विल डू, वी विल क्लिक ऑन लॉगिन। तो लॉगिन पे क्लिक करना है तो अगेन वी विल यूज द क्लिक बटन, ठीक है। ये क्लिक कर दिया, ठीक है। द मोमेंट इट विल क्लिक, ठीक है, ये क्या करेगा, लॉगिन कर लेगा यहाँ पे ये लॉगिन करेगा एंड आफ्टर दैट व्हाट विल बी हैपन, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग पहले चेक करेंगे कि ये पेज अपीयर हो गया है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ टाइप करेंगे, कुछ एक मोबाइल का ये हम स्टॉक चेक करेंगे और जितनी भी मोबाइल प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे तो सब हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। एक एक्सेल शीट में हमको राइट करना है जितना भी यहाँ पे मोबाइल है। ये क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे रिटन ओवर हियर Realme 3। अब यहाँ पे जितना भी स्टॉक प्रेजेंट है, मान लो फेसबुक ये फ्लिपकार्ट पे, सब हम यहाँ से निकालेंगे। ये मतलब नेम क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, रैम क्या है इसकी, ठीक है, डिस्प्ले साइज क्या है, कैमरा क्या है, बैटरी क्या है, ऑल दिस थिंग वी हैव टू एक्सट्रैक्ट एंड वी हैव टू राइट इनटू अ एक्सेल शीट में इसको राइट करना है। दिस इज सम सेम लाइक द naukri.com। naukri.com पे भी हम ऐसे ही करते थे, वी यूज्ड टू लॉग इन टू द naukri.com विद द हेल्प ऑफ यूजर आईडी एंड द पासवर्ड एंड after that we will type, ठीक है, according to our requirement. Let's suppose the requirement is of Java, we will type the Java and then lots of resume will come, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हर एक बंदे का resume को फेच करेंगे एंड वहां पे we will write all the detail in the Excel sheet with email ID and mobile number and then what we will do, वो बोर्ड क्या करेगा, वो email ID सबको email खुद ब खुद फ्रेम कर देगा, ठीक है। जिसका जो नाम रहेगा वो लिखेगा हाय, let's suppose आरिफ is there, हाय आरिफ, ठीक है, ठीक है, we are hiring for this, ठीक है, if you are interested प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है। उसके बाद दिस इज एन ऑटोमेटेड मेल जनरेटेड बाय दिस। तो अगर हमको 100 लोगों को मेल डालना है और जावा का
जो कैंडिडेट को, तो दिस कुड बी डन विद इन 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट भी इनफ है। दिस कुड बी डन विद इन 5 to 8 minutes. Average handling time for this will be 8 minutes. अब देखो, अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे सारा डेटा को क्या करना है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो अगेन व्हाट वी आर डूइंग ओवर, वी आर चेकिंग यहाँ पे एलिमेंट एग्जिस्ट है कि नहीं। ठीक है, अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट रहेगा तो वो डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जितना भी डेटा है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेगा सारा। ठीक है, तो जब डेटा ये एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये क्या होगा, सेम इसी तरह से सारा डेटा को मुझे राइट करके देगा। ठीक है, ये जिस तरह से यहाँ पे आया है, जितना भी स्टॉक्स है वो सारा यहाँ पे ला के देगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, मैं एक और दूसरा ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा प्रोसेस को मैं दिखा रहा हूँ, सो दैट पिक्चर विल बी वेरी होगा। इसको मैं डायरेक्ट रन करता हूँ। उसको मैं 1 by 1 करके दिखा रहा था, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट रन कर रहा हूँ। एंड देन व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, वी विल चेक ओवर हियर। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं एक ही बार में रन करके दिखाऊं या 1 by 1 करके दिखाऊं, हाउ यू वांट टू सी दिस, प्लीज लेट मी नो। इन वन स्लॉट यू वांट टू चेक, ठीक है, और 1 by 1 जैसे मैं पिछले ऑटोमेशन में करके दिखा रहा था वैसे दिखाऊं, एनी वन ऑफ यू। ठीक है, 1 by 1 1 by 1। ठीक है, फाइन। इंटरनेट एक्सप्लोरर, अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर आरिफ भाई अगर किल करेगा तो हम लोग वी विल नॉट एग्जिट फ्रॉम द मीटिंग। एनी वन ऑफ यू? हेलो, चलो मैं इसको ये करता हूँ, ये क्या करेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर को ये कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर डाला था। इसके बाद सिंस वी हैव पास्ड ओवर हियर एक्सेल, तो जितनी भी एक्सेल चल रही है एट द बैकग्राउंड, ये क्या करेगा, एक्सेल को पूरा क्लोज कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहा है, ये एक वेबसाइट को लॉन्च कर रहा है। ठीक है, ये एक वेबसाइट को लॉन्च कर रहा है, फेक नेम जनरेटर को। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, ये एक वेबसाइट को लॉन्च करेगा। एंड आफ्टर दैट ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्हाट माय रिक्वायरमेंट, जिसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए मैं, बट मैं कर दे रहा हूँ समझाने के लिए। पहले मैं देख रहा हूँ कि डेटा है कि नहीं। एनीवन ऑफ यू, किसी को दिख रहा है यहाँ पे फेक नेम डेटा करके कुछ भी ऐसा एक्सेल है? Just a minute, let me check again. सर अपर कॉर्नर सर, कहाँ पे? यहाँ पे ऊपर सर, लास्ट में ऊपर फेक नेम डॉट डेटा ऊपर सर, हाँ बाजू वही। वी ऑप्शन के नीचे। हाँ थोड़ा लेफ्ट में जाइए, फेक नेम डेटा लेफ्ट में ही है। एक मिनट, अच्छा यहाँ पे। हाँ इसके अंदर मैं थोड़ा डेटा डाल दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं समझा देता हूँ क्या करने वाले हैं बेसिकली। देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सेल शीट के अंदर मेरे पास डेटा प्रेजेंट है, और एक्सेल शीट से हमको क्या करना है, डेटा को रीड करना है 1 by 1, एंड देन वी हैव टू इंसर्ट द डेटा
इनसाइड दी वेब एप्लीकेशन, और वेब एप्लीकेशन के अंदर हमें डालना है और वहां से एक आउटपुट जनरेट होगा, उसे हमको लेना है। ठीक है, ये जैसे जेंडर है, जेंडर में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ मेल, ठीक है, एंड देन फीमेल, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अगेन वी आर टेकिंग वन डेटा, ठीक है, यहाँ पे नेम सेट करके, ठीक है, नेम सेट। अब what is my requirement? My requirement is that we have to just read the data from an Excel sheet, and this data should be inserted into the वेब एप्लीकेशन। एक वेबसाइट खुलेगी, उसके अंदर यहाँ से डेटा उठाना चाहिए। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे अमेरिकन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अमेरिकन लिख दे रहा हूँ, लेट्स सपोज आई विल पास अमेरिकन, अमेरिकन सबके लिए सेम दे देता हूँ अमेरिकन, ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी हैव वन डेटा कॉल्ड कंट्री। ठीक है, हम एक फेक नेम डेटा को ये कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंट्री दे रहा हूँ, और यहाँ से हमको क्या क्या चीज लेना है। अब ये 3 डेटा हम डालेंगे एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, और यहाँ से हम क्या क्या निकालना है हमको, यहाँ से हमको निकालना है नेम। ठीक है, ये जो नेम को निकालना है, एंड देन फेक नेम बनाएंगे, फेक एज लेंगे, और डेट ऑफ बर्थ उनका लेंगे। ठीक है, वी कैन टेक नंबर ऑफ थिंग। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये नंबर ऑफ थिंग को नहीं लेना है हमको, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट फेक नेम। ये जो फेक नेम यहाँ से जनरेट होगा, डेट वी विल टेक। ठीक है, फेक नेम हो गया, एंड देन एज, ये मेरा फेक नेम है, मैंने कर दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एज को उठाएंगे वेबसाइट के अंदर से। ठीक है, यहाँ से 3 इनपुट हम डालें, वी आर गिविंग 3 इनपुट फ्रॉम द एक्सेल। ठीक है, एंड वी आर टेकिंग 3 आउटपुट फ्रॉम द एक्सेल, और उसके बाद आउटपुट लेना, और यहाँ पे फिर हमको राइट करना पड़ेगा एज, किसकी क्या एज है, ठीक है, किसकी क्या नेम है, एंड ऑल दिस थिंग वी हैव टू राइट, एंड द डेट ऑफ बर्थ इज देयर। कुछ अलग भी ले रहा हूँ, तो मालूम नहीं चलेगा। ये हो गया। अब व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, व्हाट माय बोर्ड विल इज गोइंग टू डू, board will just read the data from the Excel sheet, and then it will pass all this data one by one to an application, and then it will take the data from that application, and then it will write all the data from the application to this column, and then इसको automatically mail करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, how we are doing, ठीक है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, तो एज पर द आरपीए रिक्वायरमेंट, जब भी हम क्या करते हैं, आरपीए को रन करते हैं, तो मेल विल बी ट्रिगर्ड टू दी, ठीक है, कंसर्निंग जो भी इसका ये है, मतलब ऑनर है कि आवर बोट इज रनिंग, और एट द एंड एट द कंप्लीशन ऑफ द रनिंग, ठीक है, a mail will trigger that this particular run has been completed, the output has been sent to particular person, जिसका भी email configuration रहेगा, सबको वहां पे मेल चला जाएगा। So again, first of all, we are filling the Internet Explorer, iExplorer. In order to fill the Internet Explorer, we use iExplorer. तो Internet Explorer को ये क्या करेगा, क्लोज कर देगा। If अभी यहाँ पे क्या है, Excel ओपन है, तो ये क्या करेगा, it will close the Excel। ठीक है, जितनी भी Excel अगर यहाँ पे है, तो ये क्या कर देगा, kill process will terminate the application। ठीक है, entire application को ये terminate कर देगा Excel। After that, what bot is doing? Bot is जस्ट लॉन्चिंग अ वेबसाइट। ठीक है, ये वेबसाइट को लॉन्च करेगा फेक नेम जनरेटर को विद द हेल्प ऑफ, सॉरी एक्सेल एप्लीकेशन इसको। ठीक है, ये क्या करेगा, ये डेस्कटॉप पे गया, इट विल विजिट दिस पार्टिकुलर डायरेक्टरी। ठीक है, और यहाँ से क्या करेगा, शीट 1 के अंदर जितना भी डेटा है, ठीक है, इसको ये रीड कर लेगा। So it has read all the data and it has
store all the data over here, ठीक है, ये सब स्टोर कर लिया। एंड आफ्टर दैट व्हाट इट विल डू, इट विल लॉन्च अ वेबसाइट, ठीक है, ओपन ये वेबसाइट को लॉन्च करेगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट, यहाँ पे वी कैन चूज, वी हैव टू लॉन्च द एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम और एज और वट एवर द थिंग यू वांट, तो वो सब हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये अभी सबसे पहले ये वेबसाइट को लॉन्च करेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, द मोमेंट इट हैज लॉन्च द वेबसाइट, तो अब यहाँ पे जो ये डेटा है, ये डेटा क्या है, मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है, एक्सेल सीट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा एक्सेल सीट से डेटा को 1 by 1 डालेगा और यहाँ से हम वी कैन एक्सट्रैक्ट इन नंबर ऑफ, बहुत सारा चीज हम निकाल सकते हैं, लेकिन करेंटली वी आर टेकिंग दिस नेम, ठीक है, ये मैं नेम ले रहा हूँ, 3 आउटपुट में ले रहा हूँ, एंड इसका डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ, ये जो इसका एज है एंड डेट ऑफ बर्थ, ये 3 डेटा ले सकते हैं। यू कैन एक्सट्रैक्ट इन नंबर ऑफ डेटा, अगर यहाँ पे आपके पास एक्सेल शीट में 100 डेटा भी है ना, तो इट विल हार्डली टेक 3 to 4 मिनट, 4 मिनट में सब लोगों का ये डेटा को निकाल के दे देगा आपके पास, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। ये मतलब बहुत फास्ट है, दिस आरपीए इज वेरी फास्ट, रोबोट काम कर रहा है तो ये बहुत फास्ट करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, मेरे पहले कॉलम में आप देखो क्या लिखा हुआ वहां, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या है, सबसे फर्स्ट कॉलम पे यू विल फाइंड दैट कि मैंने मेल दिया है, यहाँ पे मेल है जेंडर, तो ये क्या करेगा, एप्लीकेशन के अंदर अब जाएगा और एप्लीकेशन के अंदर इंसर्ट करेगा मेल, ठीक है। देखो वो उस पार्टिकुलर जगह पे गया, मेल किया। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे अमेरिका को सेलेक्ट करना है, अमेरिकन, तो मेरे वेबसाइट में क्या है, मेरे एक्सेल शीट में क्या है, अब मैंने अमेरिकन ही लिया है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, अमेरिकन ही दिखेगा, ठीक है। तो अगेन हम अगर यहाँ से रन करते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ पर टाइप करेगा अमेरिकन, ठीक है। इट हैज रिटन सिंस दैट, पहले से वहां पर ये अमेरिकन लिखा हुआ था इसलिए पता नहीं चला। अगर इसके बाद क्या है, यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट है, ये क्या करेगा, यहाँ से यूनाइटेड स्टेट को ले लेगा, ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट को ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल क्लिक, यहाँ से हम क्या लेंगे, नेम लेना है, नेम, ठीक है, ये मैंने नेम ले लिया, जो भी नेम दिखा मुझे, उसका एज मैंने लिया, ठीक है, जो भी एज दिखा वो मैंने ले लिया, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये भी हो गया। उसके बाद मैं असाइन कर दे रहा हूँ जहां जहां पे मुझे असाइन करना है, ठीक है, वो हम लेते जा रहे हैं और असाइन करते जा रहे हैं, ठीक है, असाइन कर दे रहे हैं। उसके बाद उस पेज को हम बंद कर दे रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद हो जाएगा। अभी कौन कौन सा नेम आया, अभी नेम क्या है, मैरी एम पेटरसन 43 ईयर ओल्ड एंड मार्च 3 1978, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आया। एंड देन अब हम सेकंड टाइम रन करेंगे तो इस बार जब अभी आएगा फीमेल ब्राजील, फीमेल अमेरिकन एंड ब्राजील, ऐसा कुछ तो भी आएगा जो एक्सेल शीट में है, ठीक है, वैसा आएगा। अगेन बोट हैज लॉन्च दिस एप्लीकेशन एंड आफ्टर दैट व्हाट बोट इज डूइंग ओवर हियर, इट विल जस्ट पहले ये फीमेल डालेगा यहाँ पे, ठीक है, इससे फीमेल डाला, ठीक है, एंड आफ्टर दैट नेम स्टेट में इट विल इंसर्ट अमेरिकन ही डालेगा क्योंकि वी हैव रिटन अमेरिकन ओवर हियर, ठीक है। अब ये कंट्री है, अब ये इस बार कंट्री क्या डालेगा, सिर्फ द कंट्री इज ब्राजील ओवर हियर, यहाँ पे हमने क्या किया है, ब्राजील डाला हुआ है, तो ये जब अब यहाँ पे वैल्यू डालेगा, ये डालेगा यहाँ पे ब्राजील, ठीक है, नॉट यूनाइटेड स्टेट, विल चेक, ये देखो ये ब्राजील डाला, ठीक है। अब ये जो नेम आया है, ये नेम उठाएगा और जो भी डेट ऑफ बर्थ है ऑल दिस थिंग यू विल टेक, ठीक है। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि इस बार भी सेम चीज उठा रहा है या पिछले बार मैरी समथिंग था 43 ईयर्स ओल्ड था और अलग अलग था, ये अलग चीज दिखा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे और इसको हम 2 डेटा और बचा हुआ है तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। लॉन्च करेगा, ये वैल्यू डालेगा, ठीक है। अभी इन्फोसिस में आई थिंक इफ एनीवन वाज इज वर्किंग तो उनको कॉल आ रहा होगा रोबो कॉल, ठीक है, हमेशा यू विल फाइंड दैट यू आर गेटिंग सम रोबो कॉल, ठीक है। तो रोबो कॉल वहां पे हमने आरपीए को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, या आरपीए का और आपको रियल टाइम एग्जांपल डालना है तो आप टेलीकॉम सेक्टर में जब हम लोग बिगनिंग में थे, ठीक है, तो हमको लेट सपोज हमको एक ईओके कोड डालना है या फिर कुछ भी एक छोटा पैक वगैरह भी जानना है, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता था, वी यूज टू कीप इन द क्यू, हम लोगों को क्यू में रहना पड़ता था, ठीक है। हाफ एन आवर के बाद ये मतलब हमको पता चलता था कि क्या मतलब हम कनेक्ट हो पाते थे, ठीक है, अपने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से। लेकिन वंस वी हैव इम्प्लीमेंटेड आरपीए ओवर देयर, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वहां पे सब कुछ ऑटोमेट कर दिया। तो अगर आपको इफ यू वांट टू मतलब नो अबाउट द पीओके कोड तो आपको कहाँ पे यू विल गेट द ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ आईबीआर एंड यू कैन
गेट योर नॉलेज, ठीक है। सिमिलरली रोबो कॉल वी आर गेटिंग, अगर अभी हम naukri.com के लिए जा रहे हैं तो अगर इन्फोसिस से अभी आपको कॉल आता होगा तो यू विल गेट अ रोबो कॉल, ठीक है। आपको हमेशा एक रोबो कॉल दिखेगा वहां पे। तो रोबो कॉल क्या है, व्हाट इज दिस रोबो कॉल? रोबो कॉल मतलब आरपीए इज कॉलिंग एंड इट इज जस्ट चेकिंग वेदर सम रिक्वायरमेंट इज देयर और नॉट, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है कि नहीं वो मैं दिखाता हूँ। कल भी मेरे को कॉल आया था तो मैंने सेव करके रखा है, हाउ इन्फोसिस हैज इम्प्लीमेंटेड आरपीए, ठीक है, देयर। अभी हाउ दे हैव इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इन्फोसिस है तो ये रोबो कॉल है यहाँ पे दिख रहा है। तो व्हाट इज दिस रोबो कॉल? ये रोबो कॉल क्या है? ये रोबो कॉल का मतलब है कि वी आर गेटिंग कॉल विद द हेल्प ऑफ आरपीए। हमने यहाँ पे एपीआई को इंटीग्रेट किया है विद UiPath एंड आरपीए क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको कॉल भेज रहा है। वो सबसे पहले ये पूछता है वेदर यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है ना, वेदर यू आर इंटरेस्टेड फॉर द, ठीक है, आर यू सॉरी वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब और नॉट। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब प्लीज प्रेस 1 और एल्स 2। जैसे हम 1 को प्रेस करते हैं तो उनके वहां पे जैसे ही हो गया तो हमने वहां पे एक डिसीजन दिया हुआ। इफ अगर यूजर वहां पर यूजर इनपुट हमको मिलता है 1 तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली हम यहाँ पे भेज देते हैं। इमीडिएटली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे भेजते हैं, मतलब एक ठीक है। तो इमीडिएटली क्या होगा, बोर्ड आपको एक फॉर्म भेजता है, ठीक है। तुरंत हमको क्या होता है, एक फॉर्म भेजता है रोबोट, ठीक है, जहाँ पे हम देखो हमको क्या करना है, फिल करना है उस फॉर्म को। जैसे हम फिल करके वो रिक्वेस्ट उनके डेटा सर्वर पे, मतलब उनके डेटाबेस पे हिट किया आगे, तब उनका एग्जीक्यूटिव हमको कॉल करेगा कि अब यू वी हैव रिसीव्ड मतलब योर डेटा, ठीक है, फ्रॉम योर साइट, ठीक है, वाया मेल एंड ऑल दिस थिंग। अब आपको वो सब देगा। अब यहाँ पे ये नहीं कि अननेसेसरी हम पहले जितना रिसोर्सेज को लगाते थे, 10-15 रिसोर्सेज को लगाते थे, वो बारी बारी वो कॉल करके पूछते हैं और यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज और नॉट। तो ये सब चीज को हमने क्या कर दिया है, विद द हेल्प ऑफ UiPath रोबोट, ठीक है, UiPath रोबोट के थ्रू हम क्या करें, इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, ये करते हैं। और जैसे कि इनवॉइस वगैरह है, तो इनवॉइस वगैरह लेट सपोज हम क्या करें, बैंकिंग के लिए काम कर रहे हैं, तो बैंकिंग के लिए क्या, अगर हम कुछ काम करते हैं बैंकिंग प्रोसेस के लिए, तो अभी उनके पास इनवॉइस वगैरह उनको ऑटोमेशन कराना पड़ता था, ठीक है। तो लेट सपोज अगर हम ह्यूमन बीइंग को यूज करते हैं तो वो हमको क्या होता है, वी आर इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे अगर हमको मान लो कि एक इनवॉइस है, तो डे 1 अगर 8 घंटा अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग काम करता है 8 आवर्स, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ 65 इनवॉइस को वो ऑटोमेट करते हैं। इनवॉइस ऑटोमेशन का मतलब क्या, एक इनवॉइस है क्रेडिट कार्ड का, सपोज इनवॉइस इज देयर एंड यू हैव टू जस्ट टेक द यूजर नेम। आपको उसका यूजर नेम को एक्सेल में लिखना है एंड देन यू हैव टू राइट, ठीक है, यूजर नेम को लिखना है, उनसे कितना अमाउंट लेना है, ठीक है, उनका कार्ड टाइप क्या है, कार्ड टाइप क्या है, एंड ऑल दिस थिंग। तो ऐसा ऐसा हमको 23 रिक्वायरमेंट निकालना पड़ता है ये प्रॉपर बैंक के लिए, ठीक है। जो एक बैंक के लिए हमको या ओला का है या उबेर का है या कोक का है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से मैं 23 डेटा में निकालता था एंड देन वी हैव टू अपलोड इन देयर डेटाबेस, ठीक है। और उसके बाद ये पार्टिकुलर लोगों को हम ईमेल भी कर देते थे। तो इससे क्या हुआ, रिसोर्सेस मतलब बहुत ज्यादा इनका ये कर होता है, सेव होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, मतलब ये एक्टिविटी, अब देखो यहाँ पे इसको आउटपुट क्या आया वो मैं भूल जाता, फेक नेम का दिखाना, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या किया इसने, एक शीट बनाया, ठीक है, बगल में जहाँ पे इसने नेम लिखा, ये जो भी है इसका नेम, एज एंड डेट ऑफ बर्थ है। अब हमको क्या चाहिए, मान लो कि अब हम उसको ये किसी एक्सेल के इंटायर एक्सेल शीट को वी हैव टू मेल टू समथिंग, ठीक है, ये डेटा है हमको पूरा ये इनको ये भेजना है। तो वो हम कैसे भेज सकते हैं, वो हम भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईमेल ऑटोमेशन। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल को ऑटोमेट कर देंगे और यहाँ पे हम भेज सकते हैं। अब एक एक और मैं दिखा देता हूँ प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड नॉट टेक टू मच टाइम।
PDF को लंबा है। PDF ऑटोमेशन इज लाइक दैट। इसको आप समझ सकते हैं कि लेट सपोज बैंक इज देयर, वी आर वर्किंग फॉर द इनवॉइस ऑटोमेशन। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है मेरे पास जिसका नाम है इनवॉइस ऑटोमेशन, इनवॉइस ऑटोमेशन। ठीक है, तो व्हाट बैंक इज डूइंग, ठीक है, वी हैव अ फोल्डर, ठीक है, इनकम्प्लीट फोल्डर, इनकम्प्लीट इनवॉइस folder. This is the folder. What basically bank is doing at 9 o'clock, sorry, बैंक क्या करती है 9 o'clock को that जितना भी ऑटोमेशन उनको कराना है, ठीक है, जितना भी इनवॉइस उनके पास है, लेट्स सपोज दे हैव बस कल का उनके पास है 1000 ऑफ द इनवॉइस, तो वो क्या किया उसने 9 o'clock को यहाँ पे डाल दिया। 9:30 में क्या कर दूं, एट 9:30 शार्प माय बोट हैज स्टार्ट रनिंग। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जितना भी इनवॉइस है, लेट्स सपोज पहला इनवॉइस है हामिद का, ठीक है, तो ये क्या करा, हामिद का इनवॉइस को खोला 1 by 1। ठीक है, पहले इसने हामिद का खोला एंड आफ्टर दैट आरिफ का खोला एंड आफ्टर दैट सैयद भाई का खोला, ठीक है, सैफ भाई का खोला एंड देन चंदन का खोला एंड देन 1 by 1। और ये ओपन करता है, इसके यहाँ से 23 डेटा को ये एक्सट्रैक्ट करता है। 23 डेटा लाइक जस्ट व्हाट इज द कस्टमर नेम, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ड्यूज, ठीक है, व्हाट इज द फुल अमाउंट ड्यूज, ठीक है, व्हाट इज द कार्ड टाइप, ठीक है ना, व्हाट इज द लास्ट डेट, ये सब को ये क्या करता है निकालता है और ऐसे ही एक्सेल शीट में ये क्या करेगा राइट करते जाएगा, 1 by 1 राइट करते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारा डिटेल को राइट करेगा एंड देन क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, जिसका हम जैसे डेटा खोल लिया हामिद का, तो उसको हम क्या करेंगे, जब हम उसका पूरा डेटा को निकाल लेते हैं तो वी विल मूव दिस पार्टिकुलर इनवॉइसेस इनटू द कंप्लीट फोल्डर। कंप्लीट फोल्डर में हम डाल देते हैं। अगर हामिद का डेटा अगर हम निकाल चुके हैं तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ कीपिंग दिस पार्टिकुलर इनवॉइस टू दिस इनकम्प्लीट फोल्डर, अदरवाइज रिपीटेशन हो, अगर रिपीटेशन भी हो गया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बिफोर सेंडिंग, ठीक है, यहाँ पर जब मेरा फाइनल रिपोर्ट होता है, मान लो मेरे पास 1000 लोगों का मैंने यहाँ पर डेटा निकाला है नेम एंड ऑल दिस, तो हम सेव करने से सेंड करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक ये रिमूव डुप्लीकेट रेंज यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा, अगर किसी बंदे का अगर 2 बार इनवॉइस कभी होता नहीं है, इस तरह से हमने लॉजिक डाल रखा है, ठीक है, दिस विल नेवर हैपन। लेकिन फॉर द सेफ्टी टाइप, सेफ्टी साइड के लिए व्हाट बेसिकली वी यूज टू डू, वी यूज टू रिमूव द डुप्लीकेट रेंज। इन केस अगर कुछ भी अगर ये हो गया XYZ, अगर बैंक ने ही गलती से 2 बार भेज दिया है, ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, भेजने से पहले हम क्या करते हैं, वी यूज रिमूव डुप्लीकेट रेंज। तो ये क्या करेगा, पूरे एक्सेल में चेक करेगा, ठीक है, कि कहीं पे किसी का ये है कि नहीं। लेट सपोज अभी मैं एक दिखाता हूँ, ये यूजर नेम है आरिफ, ठीक है, इसका मिनिमम पेमेंट ड्यू है 1200 ना, ठीक है, और इसका मेन पेमेंट ड्यू है दिस मच, ठीक है, एंड देन इसका कार्ड टाइप है माई जॉन, ठीक है, एंड देन अदर, और ऐसा मैं 23 डेटा निकालता हूँ डेली, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, आरिफ का यहाँ पे भी डेटा आ गया, समवेयर द डेटा इज ओवर हियर आल्सो, और इसके बाद कहीं एक जगह पे यहाँ भी आ गया, ठीक है। इट कैन बी अ मिस्टेक ऑफ द बिजनेस, ठीक है, क्योंकि रोबोट से मिस्टेक नहीं होगा। व्हाट एवर द लॉजिक वी विल इंप्लीमेंट इनसाइड द रोबोट, सेम थिंग विल बी रिटन ओवर हियर, वो कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब हम जब रिपोर्ट फाइनल उनको भेजने लगते हैं तो व्हाट वी यूज टू डू, या हम उनके डेटाबेस को अपडेट करने लगते हैं, तो बिफोर अपडेटिंग वी विल यूज, क्या करते हैं हम यहाँ पे पूरा डेटा एक्सेल शीट को रीड कर लेते हैं एंड आफ्टर रीडिंग दिस एक्सेल शीट हम क्या करेंगे, ये मान लो जितना डेटा आज उन्होंने 20 ही भेजा मेरे पास, तो इसको हम क्या करें, इसको हम रीड कर लिए एंड देन वी हैव जस्ट यूज ए क्वेरी दैट इज रिमूव डुप्लीकेट रेंज। रिमूव डुप्लीकेट रेंज क्या करेगा, इट विल रिमूव द डुप्लीकेट रेंज। अगर आरिफ का 2 बार यहाँ पे मुझे दिख गया है तो यहाँ पे आरिफ का डेटा को निकाल देगा। एक्सेल इज द मेन थिंग इन यूआई पार्ट। एक्सेल में अगर मैं मतलब एक्सेल अगर जिसको आ गया तो इट इज वेरी इजी टू गेट जॉब इन एज एन आरपीए डेवलपर, ठीक है, और एज एन यूआई पार्ट डेवलपर। एक्सेल इज वेरी वास्ट, ठीक है। तो अगर मैं एक्सेल पे बताऊं तो आई थिंक इट विल टेक 20 क्लासेस इन एक्सेल ऑल्सो, एक्सेल एंड वेब, ठीक है, एंड देन पीडीएफ ऑटोमेशन, ठीक है। तो हर जगह पे अब यूआई पाथ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिक 3-4 एप्लीकेशन को हम लोग ये करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे कि आप देखो, पहले मैंने क्या किया, एक क्लाइंट के लिए मैंने काम किया, उनका एक वेब एप्लीकेशन को मैंने ऑटोमेट किया। अब ये वेब एप्लीकेशन क्या चेक कर रहा था, दिस वाज द वेब एप्लीकेशन व्हिच वाज चेकिंग कि एक screen is not visible. हेलो, Screen is not visible, sir. screen is not visible to you or everyone? For me. No, it is clear. So it's clear and visible. Yes. It is clear and visible, sir. I No think issues. from your side, your network has some issue, I guess.
Okay, okay, I will check it once. ठीक है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले व्हाट वी हैव डन, वी हैव यूज्ड अ वेब एप्लीकेशन, दिस वेब एप्लीकेशन को मैंने ऑटोमेट किया एंड आफ्टर दैट पहले मैं कौन कौन सा एप्लीकेशन को इंटीग्रेट किया वो मैं बता देता हूं। एक्सेल एप्लीकेशन, देन अगेन ओरेकल बेस्ड एप्लीकेशन, ओरेकल बेस्ड एप्लीकेशन एंड देन वी हैव इंटीग्रेट ईमेल ऑटोमेशन, ठीक है, ईमेल था एक, अगेन वी हैव ऑटोमेटेड 2 ओरेकल एप्लीकेशन, ओरेकल बेस्ड एप्लीकेशन एंड देन फाइनली। अब देखो ये करने के लिए ये एक मेरा ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें कि what board was just launching a web application. From the web application it was checking that इस particular time पे within last 3 hours किसी बंदे का यहाँ पे हायरिंग हुआ है कि नहीं। if any hiring has been done तो ये क्या करेगा, उसको एक्सेल में इंपोर्ट करता था, ठीक है, एक्सेल में एक जगह पे सेव कर दिया एंड देन यहाँ पे एक्सेल में बहुत काम रहता है, ठीक है, एक्सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक, लेट सपोज इस रन में 5 बंदे आए यहाँ पे, तो वी चेक कि किसी का एम्प्लॉय आईडी जनरेट करने से पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये यहाँ पे कंपेयर करेंगे विद द प्रीवियस एक्सेल कि किसी का रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है, वहां पर से उसका नेम शॉर्टिंग करना, कॉमा रिमूव करना, ऑल दिस थिंग, अगर वो बिलोंग करता है कर्नाटका से उसका स्टेट कोडिंग करना और अदर बहुत सारा काम है। वो करने के बाद हम क्या करते थे, एक यहाँ पर से आउटपुट आया मेरे पास, लेट सपोज फाइनल आउटपुट वी गॉट, ठीक है। अब इस फाइनल आउटपुट को वी यूज टू लॉन्च एन ओरेकल बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है, ओरेकल बेस्ड एप्लीकेशन को हमने लॉन्च किया एंड देन व्हाट वी यूज टू डू, यहाँ से हमने 3 फाइल को जनरेट किया, ठीक है, यहाँ पे एक होता था एरर फाइल एम्प्लॉय, ठीक है, और एक होता था सक्सेस फाइल एम्प्लॉय एंड एक और फाइल होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो सक्सेस फाइल एम्प्लॉय होता है, सक्सेस फाइल एम्प्लॉय में अगर आरिफ है तो व्हाट इज द एम्प्लॉय आईडी ऑफ आरिफ और जो भी उसका है बहुत सारा डिटेल, वो हम क्या करेंगे, वो हम ऑटो ये मेल करते हैं, 3 कंसर्न टीम है, 3 कंसर्न टीम इज देयर, उसको हम मेल किए, ठीक है, वो मेल कंप्लीट हो गया। उसके बाद जैसे ही वो मेल कंप्लीट हो गया फिर हम 2 ओरेकल बेस्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं, वहां पे ये बंदे का एम्प्लॉय आईडी वगैरह जो है इसको हम क्या करते हैं, अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पर से हम तो इस ओरेकल बेस्ड एप्लीकेशन में इसकी आईडी एंड ऑल दिस थिंग वी हैव अपलोडेड। इसके बाद यहाँ से एक मुझे कोड जनरेट होता था, लेट सपोज कोड वाज लाइक GHF। अब इस कोड को क्या करना है, अगेन वी विल लॉन्च एन ओरेकल बेस्ड एप्लीकेशन और इस कोड को बस हमको क्या करना था, इस एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर देना है, ठीक है। ये अपलोड हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर से एक स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पर से बोर्ड क्या करेगा, यहाँ से एक स्क्रीनशॉट कैप्चर करेगा, स्क्रीनशॉट लेगा एंड देन यहाँ पे फिर से एक ईमेल ट्रिगर करेगा। अब इस काम को करने के लिए यहाँ पे रिसोर्सेस लगते थे, ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने काम किया था 13 पीपल, ठीक है, 13 पीपल लगते थे वहां पे। तो जब मेरा रोबोट का 13 पीपल वाज वर्किंग डेली 8 आवर्स, हर दिन वो काम करते थे। अब जब मेरा रोबोट यहाँ बन के का ये तैयार हो गया तो वी हैव रिप्लेस दिस 13 पीपल विद ओनली 2 पीपल। अब यहाँ 2 पीपल को किस लिए रखे, वो भी हम लोग एरर ऑफ मार्जिन के लिए रखते हैं कि अगर कभी भी लेट सपोज अनफॉर्चुनेटली माय बोट हैज फेल्ड, तो ये दो लोग इसको क्या करें, एक तो बंदा सपोर्ट का काम करेगा, दूसरा जो नॉलेज वाला बंदा है कि नहीं कहाँ पर से क्या करना है वो उसको बताएगा, तो 2 लोग को रखें। और ये जो 13 पीपल जो वर्क कर रहे थे मंडे टू फ्राइडे एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे दे वर वर्किंग, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम अपना बोर्ड को इम्प्लीमेंट करें तो हम क्या कर रहे थे, सिर्फ हम 3 रन में सारा काम कर लेते हैं। थर्सडे के दिन हम अपना बोर्ड को रन करते हैं, ठीक है, थर्सडे के दिन हम अपने बोर्ड को रन करते हैं और 3 बार रन करते हैं एवरी 3 आवर, starting from 12, 3 o'clock and 9 o'clock। ये सप्ताह भर का काम इतना टाइम में ही कर दे रहा था, ठीक है, ये इतना मतलब इसकी फिजिबिलिटी थी, इतना टाइम में करना है। तो इससे हमको बेनिफिट भी बहुत होता है, अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं रोबोट को तो वी हैव नंबर ऑफ बेनिफिट भी होता है। क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, एनीवन ऑफ यू? प्लीज बताओ, किसी को कुछ भी आइडिया है तो हम क्यों, मतलब क्या बेनिफिट होगा यहाँ पे अगर हम अपना रोबोट को यूज करेंगे तो? अभी हाँ, एक मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा था तो आई थिंक थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और इसको पहले एक मैं प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं पूछता हूँ कि बेनिफिट वगैरह क्या होगा और कहाँ पे बेसिकली वी कैन यूज दिस आरपीए। देखिए ये सबसे पहले क्या करेगा, अगेन ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर ओपन है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्लोज करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे ईपीएफओ की वेबसाइट है उसको लॉन्च करेगा, ठीक है। अब ईपीएफओ को वेबसाइट को लॉन्च करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, मैक्सिमाइज भी करेगा। अब इसके अंदर यूजर आईडी को टाइप करने के पहले, बिफोर एंटरिंग द यूजर आईडी, इट विल चेक वेदर दिस पार्टिकुलर एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड और नॉट। इफ
तो हम क्या करेंगे, दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन है existence, ये जो लॉगिन पेज existence is true. जैसे the moment bot has came to know that this particular page is मतलब launched true है यहाँ पे, then what it will do, it will insert the UAN number. ये क्या करेगा, it will launch the UAN number, ठीक है. After that it will insert the password, ठीक है. अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे इंसर्ट करेगा whatever the password is there, insert this password. ओके, पासवर्ड को इंसर्ट करने के बाद अब यहाँ पे एक चीज है जो कि वी विल डिस्कस इन आवर अपकमिंग क्लासेस. हाउ मच परसेंट ऑफ द, मतलब जब भी हम व्हेनेवर वी आर टेकिंग मींस एनी प्रोसेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद द डिस्कवरी फेज. इन द डिस्कवरी फेज वी विल एनालाइज द प्रोसेस कैन बी ऑटोमेटेड और नॉट. If the process can be automated, how much percentage of the process can be automated? Either it can automate 100% or it could not automate 100%. The moment we find that the process could not automate 100%, we suggest some enhancement to the client. If they are ready to do some enhancement, then we used to tell that if you will do this kind of the enhancement, then only we will do the 100% of the automation, or else we could provide you 90-95% of the automation. ठीक है, अगर वो रेडी होते हैं कि हाँ हम ये चेंजेस करेंगे, तब हम 100% ऑटोमेशन करेंगे. अब कौन सा आइडिया है जहां पे वी कुड नॉट इंप्लीमेंट 100% ऑटोमेशन? एनी वन ऑफ यू. अब जब फेसबुक पहले यूज करते थे, ठीक है, आज से 5 साल पहले, तो वहां पे अभी क्या था, पहले वो नहीं पूछता था आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक है. तो बीच बीच में क्या आ रहा था, जब भी द मोमेंट वी यूज टू लॉग इन फेसबुक, तो वो पूछता था आई एम नॉट अ रोबोट. तो वो ये इसलिए वहां पे डाले थे ये इंटरफेस. तो क्या वो वहां पे जैसे ही आरपीए आई पिक्चर में ब्लू प्रिज्म वगैरह, तो ये क्या किया, डम्मी फेसबुक अकाउंट बराबर ये क्रिएट होने लगा. तो जैसे ही फेसबुक ने देखा कि एकाएक मेरा किसी बढ़ गया है, तो ये चीज को रोकने के लिए वो क्या किया, वहां पे एक चेक बॉक्स दिए कि हमको चेक करना है आई एम नॉट अ रोबोट. तो उसको भी हम लोग ऑटोमेट कर दिया. एंड आफ्टर दैट व्हाट वी फाइंड दैट, अब यहाँ पे देखो कि जब भी आप फेसबुक को लॉन्च करते हो, तो वहां पे क्रिएट करने जाते हैं, तो वहां पे हमको या तो ट्रैफिक लाइट या रोडवेज हमको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है. तो ये सारा चीज है, कैप्चा आ गया, ओटीपी आ गया, या आंसर बॉक्स आ गया, जिस कुड नॉट बी ऑटोमेटेड. या IRCTC पे ऑटोमेटिकली तत्काल टिकट कटने लगा, या फिर फ्लैश सेल आने लगे फ्लिपकार्ट पे, तो वो ऑटोमेटिकली होने लगा. फ्लैश सेल अभी भी हो रहा है. दे हैव नॉट डन एनी, Amazon has done something. half వస్తుంది half లేదు. Yeah, Mr. Taha bhai, Hamid, sorry to interrupt you. Taha bhai, can you go on mute because you are not on mute? ठीक है, देखिए तो क्या हुआ, जैसे ही आरपीए पिक्चर में आई, द मोमेंट आरपीए केम इनटू द पिक्चर, तत्काल टिकट, ठीक है, वाज ऑटोमेटेड, ठीक है, इन IRCTC. फ्लैश सेल ऑटोमेटेड, फेसबुक ऑटोमेटेड. तो अब इन लोगों के लिए एक सरदर्द हो गया. तो इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने सोचा कि वी हैव टू डू समथिंग. तो इन्होंने कैप्चा यूज किया, ओटीपी यूज किया, या फिर ये मतलब आंसर बॉक्स यूज करें, कुछ भी यूज करें, सो दैट ऑटोमेशन कैन नॉट बी. तो वो जैसे ही सबसे पहले और फेसबुक ने क्या किया, वहां पे एक चेक बॉक्स दिया, आई एम नॉट अ रोबोट. अब वो चीज हटा दिया क्योंकि हमने उसको भी ऑटोमेट कर दिया. तो अब वो क्या दे रहे हैं, दे आर गिविंग सम, मतलब कभी ट्रैफिक दे देते हैं, कभी रोड दे देते, रोड मतलब जेब्रा क्रॉसिंग दे देंगे, एंड वी हैव टू सेलेक्ट. तो ये सारा चीज ऑटोमेट नहीं हो सकता है. तो अगर जो चीज ऑटोमेट नहीं होता है, तो हम उसको प्रोजेक्ट जब लेते हैं क्लाइंट से, तो वी यूज टू टेल एनालिसिस के द्वारा. अब यहाँ पे देखिए, इस कंडीशन में इन्होंने क्या किया, ये चीज को डायनामिक किया. सिर्फ एक पार्ट मेरा क्या है ना, ऑटोमेट नहीं हो रहा. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर. अगर अगेन इफ वी वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, वी यूज टेक द इनपुट डायलॉग बॉक्स. सिर्फ हमको क्या करेगा, एक मैसेज यहाँ पे दिखाएगा, ये जो आंसर है मुझे वहां डालना है, 88 - 7 व्हाट इज दिस, 81, ठीक है, 81. तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स में सिर्फ हम 81 डाल देंगे. जैसे ही हम यहाँ पे 81 डालेंगे एंड क्लिक करेंगे ओके, ठीक है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, तो ये तुरंत जाके नहीं कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे ये करना पड़ेगा. अब ये 81 क्या होगा, इसके अंदर डाला मैंने, इस वेरिएबल के अंदर, यहाँ पे 81 आ रहा है, ठीक है. एंड आफ्टर दैट ये हमको क्या करना है, 81 आ गया, एंड आफ्टर दैट हम क्लिक करेंगे लॉगिन पे. Hamid bhai, in between just ask question, our audience are following or not? ठीक है, ये वाला दिखाने दीजिए, उसके बाद बस मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, देन वी विल कम टू दैट. Little voice also, if you can enhance little. डेफिनेटली आई मैं बता देता हूँ, ठीक है. जैसे ये पेज आ गया, तो बोर्ड क्या चेक करेगा, यहाँ पे ये पेज आ गया. अब बोर्ड को क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पे ये मेरा है, क्या बोलते हैं इसको, पीएफ नंबर है, ठीक है. तो इसमें से किसी एक को चूज करना है. तो उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे लॉजिक डाल रखा है, ठीक है. तो सबसे पहले बोर्ड ये चेक करेगा जिस पेज में आई हैव टू चेक दी यूएन नंबर, वो पेज यहाँ पे है कि नहीं, ठीक है. तो देखो
यूएन पेज एग्जिस्टेंस इज ट्रू, जैसे इसको पता चला ये ट्रू है, ठीक है, तो ये क्या करेगा यहाँ पर से, ये यहाँ पे देखो अभी यू विल सी ओवर हियर, यहाँ पे कुछ भी मेंबर आईडी सेलेक्टेड नहीं है, ये क्या करेगा यहाँ पर से मेंबर आईडी को सेलेक्ट करेगा। जैसे ही आप सेलेक्ट आइटम यूज करोगे सारा मेंबर आईडी आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो मेंबर आईडी के साथ हमें डील करना है, जैसे कि यहाँ पे कंपनी बहुत सारी सर्वर यूज कर रही है, 25-26 सर्वर है, अब हमको क्या करना है, कोई एक सर्वर को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए भी यूज सेलेक्ट आइटम एक्टिविटी। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इस पार्टिकुलर चीज को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ये सेलेक्ट कर लेगा, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है व्यू पासबुक लॉगिन, तो इसको हमको क्या करना है, व्यू करना है। तो व्यू करने के लिए अगेन व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे क्लिक करना है कहीं पे, तो वी विल सिंपली यूज क्लिक एक्टिविटी, ठीक है, क्लिक एक्टिविटी यूज करें। उसके बाद हमको क्या करना है, डाउनलोड पासबुक करना है, यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया, पासबुक को डाउनलोड करना है, इसको मैं क्या करूंगा, डाउनलोड पासबुक पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अगेन आई हैव यूज्ड दिस क्लिक एक्टिविटी, ठीक है, ये डाउनलोड पासबुक पे, फिर डाउनलोड पासबुक पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो फिर अब देखते हैं कि क्या हुआ वहां पे, ठीक है। तो हमको सारा स्टेप, ये यहाँ पे डाउनलोड फाइल आता है, अब हमको क्या करना है, ये फाइल को डाउनलोड करना है, ठीक है, दिस फाइल शुड बी डाउनलोडेड, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, देखो किस तरह से डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, ये फाइल को क्या कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। डाउनलोड करके अभी देखो जहाँ पे हमको सेव करना है, अभी यहाँ पे हमको सेव करना है, ठीक है। अभी आप देखेंगे इस फाइल के अंदर, अभी देखो 9 सब, लास्ट फाइल मैंने कब सेव किया, 29 तारीख को, ठीक है। अभी यहाँ पे एक फाइल जनरेट होगा जो कि होगा 5 तारीख को, वी विल विजिट दैट आल्सो। अब यहाँ पे एक फाइल को हम इस लोकेशन पे सेव करेंगे विद द हेल्प ऑफ रोबोट, ठीक है। अभी रोबोट गया यहाँ पे, ठीक है, इट हैज रिटन, ठीक है, ये मंथली रिपोर्ट है, ठीक है, ये इस फोल्डर में जाओ, ठीक है, MFIRD, उसके अंदर एक और फोल्डर है UN मंथली रिपोर्ट, इसके अंदर जाने का है, ठीक है ना। आफ्टर दैट फाइल का नेम हम देखेंगे, जो जिस नाम से हमें फाइल को सेव करना है, ठीक है। अब फाइल का नेम हम क्या देंगे, आज का करंट डेट एंड टाइम मैंने लिया, यू कैन टेक एनी, ठीक है, ये हो गया। अब इस नाम से ये क्या करेगा, फाइल को सेव करेगा उस लोकेशन पे, ठीक है। अब फाइल को जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये एप्लीकेशन का काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को बंद कर देंगे, जैसे जिसका काम होते जा रहा है वो एप्लीकेशन को बंद करेंगे। और अब हम चेक करेंगे ये फाइल यहाँ पे हमें आया है कि नहीं, लेट्स सी। MFIRD के अंदर हम जाएंगे एंड आफ्टर दैट UN करके एक मंथली रिपोर्ट है, ये 5 तारीख को 12:07 पे कुछ इनहेंसमेंट हुआ है, ये यहाँ पे देखिए 5/9/2007, अभी ये फाइल यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद मेरा क्या रिक्वायरमेंट है, इस फाइल को हमको मूव कर देना है, इस फोल्डर के अंदर नहीं रखना है, इसको हमको मूव करना है समवेयर। तो मूव करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट एक्टिविटी है मूव फाइल करके, वो हम यूज करेंगे, इसको हम मूव कर देंगे, ठीक है। जस्ट ए मिनट, मैं ये कर रहा हूँ अभी, इसको ये खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मूव वगैरह करना है तो हम मूव कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया, इस तरह से मतलब हम करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ये बेनिफिट्स क्या हुआ अगर हम RPA को यूज करें, भाई मतलब कंपनी इतनी पागल क्यों हो रही है RPA के पीछे, आखिर इसमें इसके पीछे क्या लॉजिक है। जब हम लोग मतलब बिगिनिंग में हम जाते थे, ठीक है, ऑटोमेशन के लिए, आई हैव मतलब पहले तो वो डेफिनेटली ये आज से 3 साल पहले 4 साल पहले अगर हम जाते तो वो सिर्फ ऐसे पूछते थे आप कर लोगे क्या, ये मेरे पास है रिक्वायरमेंट। तो एकाएक मतलब ये 3-4 साल में इतनी रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ गई RPA की, मतलब क्या फायदा है इसके, बेनिफिट क्या होगा RPA का, और कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ये हमको पता लगना चाहिए। कितने कॉल्स हैं वो यहाँ पे RPA पे, अगर आप देखोगे तो नंबर have some answers from audience where and all we can use RPA? हाँ, आई एम आस्किंग फ्रॉम ऑडियंस ओनली, क्या बेनिफिट्स क्या है इसका अगर वी आर इम्प्लीमेंटिंग RPA? It is a time consuming टाइम सेविंग, ठीक है, टाइम सेव कर रहा है, ठीक है, टाइम सेव हुआ, ठीक है, मैन पावर सेव हुआ। मेरा पहले तो 13 लोग कर रहे थे 8 दिन काम करते, सॉरी 13 लोग काम करते थे 8 घंटा काम करते थे, अब मैं सिर्फ एक दिन इसको ये कर रहा हूँ, टाइम और दोनों का दे रहा हूँ, मैन पावर ही बता रहा हूँ, एक दिन मैं चलाता हूँ, ठीक है, और वो भी 2 रिसोर्सेज के साथ, ओनली 2 रिसोर्सेज के साथ, तो मैन पावर मेरा रिड्यूस हुआ और टाइम भी रिड्यूस हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, इलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन एरर, ठीक है, ह्यूमन एरर नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, रोबोट को जितना बोलेंगे भाई उतना ही करेगा, ठीक है, इट्स नॉट लाइक मतलब ह्यूमन की झगड़ा होकर के आया या कुछ भी मतलब कहीं कुछ हुआ है तो इसमें मतलब कुछ भी मिस्टेक कर देगा, तो ये क्या करेगा, इट विल नॉट मतलब स्पेलिंग को इग्नोर करो, ठीक है, इलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन एरर, ठीक है, नो एरर विल कम, ठीक है, इफ वी आर इम्प्लीमेंटिंग रोबोट एंड 24/7 अवेलेबिलिटी,
इसका ये मतलब हुआ, लेट्स सपोज संडे इज देयर, सैटरडे इज देयर, ईद इज देयर, दिवाली इज देयर, हॉलीडे इज देयर, बोर्ड इज रेडी। बोर्ड कभी थकता ही नहीं है, वो 24/7 काम करता है। अगर 24/7 काम करेगा तो ये ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो मेरा क्या बढ़ेगा, कॉस्ट भी, ये सॉरी मेरा रेवेन्यू जनरेशन होगा। यहाँ पे अगर मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ा तो मेरा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। और इसके बाद मेरा क्या होगा, कॉस्ट भी सेव हो रहा है, कॉस्ट सेविंग होगा। और दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल बताए तो लेट्स सपोज मैंने 7.5 लाख में एक बोर्ड बनाया, ठीक है, टेकन के लिए एक बोर्ड बनाया मैंने, ठीक है। तो वो इसके लिए मुझे कितना टाइम मिला, 1 ईयर का टाइम मिला ये बनाने के लिए, ये मुझे 1 ईयर का टाइम मिला। और ये मंथली अगर ये नहीं करते तो उनको मतलब मान लो कि वहां पे 50,000 इंटू 13 टीम, 3 लोगों को मतलब 3 टीम को मैंने रिप्लेस किया था, कितना, उनको 1 महीना में जाता था 6.5 लाख, ठीक है। और उन्होंने मुझे कितना दिया, 7.5 लाख। सेविंग कितना हुआ, अगर वो मुझ पे RPA डेवलपर को अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको बहुत फायदा भी है, ठीक है। ये हो जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, ये तो बेनिफिट हुआ। अब द मेन थिंग इज देयर कि हम इंप्लीमेंट कहाँ पे करेंगे। जैसे कि अभी मैंने दिखाया रोबो कॉल आ रहा है, चैटबॉट, आई थिंक सब पता होगा सबको चैटबॉट, ठीक है, वो हो गया एग्जांपल, ठीक है। रोबो कॉल है, रोबोटिक से हम कॉल करते हैं, ठीक है। और हम पहले फोन पे मतलब जो HR टीम में बहुत लंबी लंबी टीम होती थी, अभी वहाँ पे हम लोग शॉर्ट टीम कर दे रहे हैं। HR वगैरह में वहाँ भी यूज कर सकते हैं। और कहाँ पे कर सकते हैं, वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करना है, स्टॉक्स चेक करना है, ठीक है। कितना मतलब अभी मतलब ये है जॉब है अभी UI पाथ का, वो मुझे जानना है 2 मिनट में, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। या हमको क्या करना है, और भी कुछ भी है, डेटा वगैरह निकालना है वेबसाइट को, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं पेशेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। पेशेंट रजिस्ट्रेशन के लिए जो अपॉइंटमेंट बुक वगैरह होता है वहाँ यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनवॉइस वगैरह निकालना, और ये ओला, उबेर, ठीक है, फ्लिपकार्ट, सब लोग यूज करते हैं। इनवॉइस प्रोसेसिंग में हम यूज कर सकते हैं, जहां जहां हमको इनवॉइस को प्रोसेस करना है। ये प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया है, इनवॉइस प्रोसेसिंग पे, ठीक है। और HR के प्रोजेक्ट पे, ठीक है, जहां से हम क्या करते थे, वी यूज टू एक्सट्रैक्ट डेटा, ठीक है। अगर UI पाथ का है तो UI पाथ का हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया डेटा, जो भी उनका कीवर्ड है, कीवर्ड के हिसाब से मैंने एक्सट्रैक्ट किया, और क्या क्या सब ऑटोमेटिक मेल चला जाएगा, किसी लोगों को रहने का जरूरत नहीं है वहां पे, ठीक है। जो 10 लोगों की टीम होती थी, 15 लोगों की टीम होती थी, उनको हमने रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ रोबोट, ठीक है। HR एंड पेरोल डिपार्टमेंट पे, HR एंड पेरोल, इस पे भी मैंने काम किया है सक्सेसफुली, जो अभी मैं एग्जांपल दे रहा था 7.5 लाख वाले का, ठीक है। यहाँ पे कर सकते हैं, कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग में हम कर सकते हैं, ठीक है, कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग में कर सकते हैं। कॉल सेंटर ऑपरेशन जो मैंने बताया, पहले हमको क्यू में रहना पड़ता था, ठीक है, अब नहीं रहना पड़ता है, ठीक है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ RPA, ठीक है। ऑनबोर्डिंग हो गया, चैटबॉट हो गया, एंड ऑल दिस थिंग। ये मतलब बहुत वास्ट फील्ड है, टेलीकॉम सेक्टर है, ठीक है, हर जगह पे हम लोग भी कैन यूज RPA। और अगर यू हैव मतलब 4 year of experience, ठीक है, in RPA, then you can easily expect 16 years. Yeah, we have a question here. Yes. They're telling it can be used for software load testing. Software? So can it be used for software load testing on chat? ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या क्या चीज है आप मुझे ये बताओ, 1 by 1 प्लीज बताओ क्वेश्चन। आप ये करो, चैट में पहले चेक कर लेना, जस्ट मिनट। Used for software testing, software load testing. जस्ट मिनट। सॉफ्टवेयर लोड टेस्टिंग, एग्जैक्टली इसको इलैबोरेट करो प्लीज। आई विल लेट यू नो व्हाट इज दिस सॉफ्टवेयर लोड टेस्टिंग। Please, who has asked this question? Yeah, can you elaborate? It has come from. Yeah, because after developing a web application, we have to check whether it can serve multiple users at a time.
So by taking data from different data from the Excel, can it be used for testing the load, like 100 users or 1,000, 10,000 users at a time? So डेफिनेटली इट कैन, कर सकता है, ये कर सकता है. फॉर दैट वी हैव टू डेवलप सम कोड, ठीक है, वो हम लोग मैनुअल प्रोसेस हाउ वी यूज्ड टू डू मैनुअली, ठीक है, वो हम करेंगे एज वेल एज सम ऑफ द लॉजिक. Yeah, suppose you want to whether this application can serve multiple users at a time, for example 1,000 users. This is not practical to arrange 1,000 users at a time entering data. Okay, the test of in the time of testing. So, but in the real case, 10,000 or 50,000 users may be using the software at a time. So I think this is useful for that one also, I think. 10,000 data is there, okay, in an Excel sheet. Suppose 10,000 data in an Excel sheet, ठीक है, and what you want to do, you want to upload, ठीक है, this data in different website. ठीक है, तो हम आराम से कर सकते हैं, इसमें कुछ क्या इशू है. दिस इज अ वेरी, मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगाना है. 10,000 डेटा है, लेट सपोज मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ. 10,000 डेटा में मेरे पास मान लो कि 500 डेटा है दैट वी नीड टू अपलोड इन XYZ डॉट, ठीक है, वेबसाइट, ठीक है, 500, ठीक है, REP वेबसाइट 500. No, in a single website itself. Suppose whether it is just checking whether the application concurrent users. Concurrent users, yeah, concurrent users. एक 10,000 डेटा है, ठीक है, एंड इसी करना है यहाँ पे कुछ लॉजिक लगा करके. 10,000 डेटा में 500 डेटा है मेरे पास, जो कि ये वेबसाइट 500 दूसरे वेबसाइट में जाएगा. तो दैट आल्सो भी के अंदर सॉर्टिंग कर लेंगे, जो भी मेरा थंब रूल होगा कि ये अपलोड कर. और अगर सिंगल में करना है तो फिर कुछ लॉजिक नहीं. इट इज, ये तो हमने कई बार किया, तो ऐसा तो हमको करना ही है, यही चीज तो करना है विद द हेल्प ऑफ आरपी. होप आई हैव गिवन योर आंसर. Is it the right answer, or you are having any other question? So if you can elaborate, so it will be easy for us to explain you. I think like he has got the answer. ठीक है, this thing we need to do with the help of RPA. This exactly RPA is doing. Okay, anyone have any other question? किसी को कुछ और क्वेश्चन है? Please let me know. Awesome. Yeah, Mr. Ismail is having a question. He had just. Hello. Hello. What is your question? Hello sir, can you hear me? हाँ, yes, I can hear you. हाँ सर, मैं क्या कह रहा था, मैं तो अभी फ्रेशर हूँ, मैं अभी IT में आने का देख रहा था. तो मुझे एक कलीग ने सजेस्ट किया था कि Amazon AWS सीख लो, और मेरे भाई ने सजेस्ट किया था कि ये UiPath RPA कर लो बोल के. हाँ, तो सर मुझे दोनों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, मैं आपका फर्स्ट सेशन देख रहा था RPA पाथ के बारे में. ठीक है, अभी मैं मेरी टीम में मतलब मुझे हायर करना था 6 लोगों को, ठीक है, तो आई हैव हायर BA को मैंने हायर किया, ठीक है, 2 बंदे को मैंने BA को हायर किया, ठीक है, एक BSc था को हायर किया, एक BTech को किया. तो अगर आप जब UiPath का निकालोगे तो आपको ये क्राइटेरिया नहीं दिखेगा कि वी नीड 60%, ठीक है. आई हैव वर्कड इन डिफरेंट MNC, ठीक है, 2 MNC में मैंने काम किया है जो कि डिफरेंट टेक्नोलॉजी के लिए 60% मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी क्राइटेरिया नहीं मांगेंगे. एज वेल एज वो ये नहीं पूछेंगे कि वो सिर्फ बैचलर डिग्री, वो सिर्फ डिग्री पूछेंगे, ये पूछेंगे ग्रेजुएट है कि नहीं. दे आर नॉट आस्किंग कि यू बिलोंग्स टू दिस बैकग्राउंड, ठीक है. वैसे भी अभी रिसोर्सेज की कमी है, तो वहाँ पे ये पूछेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जहाँ पे काम करते हैं फिलहाल, ठीक है, तो वहाँ पे अभी तो मतलब कुछ मतलब धीरे धीरे डेवलपर बने. पहले जब मैं गया था एक कंपनी में, ठीक है, इंटरव्यू देने के लिए, और मेरा दोस्त भी गया था, आई थिंक आरिफ है, 2 दिन मेरी में. तो उसको बस ये पूछा, ये रिक्वायरमेंट आप कर लोगे क्या? यस वी कैन डू, ठीक है, आप ज्वाइन हो, ठीक है. और एक जगह मैं गया था, ठीक है, तो वहां पर सिर्फ पेन एंड पेपर दे दिए, बोर्ड पे बता कि समझो मुझे व्हाट इज दिस आरपी, आप क्या जानते, बस दिस वाज द सिंपल राउंड. तो इस तरह से था. अभी भी वी डोंट हैव मच
UI पार्ट डेवलपर इन द मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है कि बिलोंग्स टू BA, BCA, BSc, BTech, इससे कोई भी दिक्कत नहीं। मोस्ट पीपल आर देयर हु इज वर्किंग राइट। अभी मैं जिसको रिपोर्ट कर रहा था इससे पहले, ठीक है, जब मैं मतलब करंटली आई एम वर्किंग एज अ टीम लीडर, ठीक है, तो इवन शी वाज वर्किंग, मतलब उसका जो बैकग्राउंड था, शी बिलोंग्स टू BSc, उसका भी BSc था, उसने बस कहीं से UI पास सीखा और वो ज्वाइन की, ऐसा है यहाँ पे। तो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं आपके पास डिग्री नहीं है या फ्रेशर्स हो तो ये लगेगा नहीं। हाँ, फ्रेशर्स को थोड़ा ये होता है, दिक्कत होता है, बट लग जाएगा। अच्छा जी सर, मेरा हो गया है डिग्री, मैं मैकेनिकल से हूँ। अरे मैकेनिकल से कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है मैकेनिकल से भी। सर ये कितना ड्यूरेशन लगेगा अगर हम प्रोफिशिएंट बनना चाहते हैं UI पाथ में, तो आपके अंदाजे से? 60 डेज 60 डेज 55 से 60 दिन लगेगा, वो भी सैटरडे एंड संडे को फॉल्ट नहीं करेगा। अभी मार्केट में बहुत सारा है, यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट मिलेगा जो कि आपको 30 डेज में करा रहे हैं, अगर तो वो ऊपर से कराएंगे मतलब नहीं, क्योंकि एक्सेल जानना बहुत जरूरी है। एक्सेल इज वेरी वास्ट। एक्सेल के लिए मुझे कम से कम, मैं कितना कम भी बताता हूँ, तो 20 डेज लगता है, ठीक है, 20 दिन यहीं पे चला जाएगा। और एक्सेल इज इम्पोर्टेंट एज वेल एज उसके बाद मेरा वेब ऑटोमेशन के लिए मेरे पास आई थिंक 8 दिन चला जाएगा, 8 डेज चला जाएगा, एंड RE फ्रेमवर्क एंड ऑल दिस। तो बाकी चीज के लिए भी आपको टाइम देना होगा। तो यू हैव 60 डेज, देन ओनली यू थिंक दैट कि यू कैन बिकम प्रोफेशनल। जी सर। सर आप सिखाते हो क्या, मतलब क्या आप टीच करते हो क्या सर UI पाथ? अरे हाँ भाई, इसलिए तो मैं डेमो दे रहा हूँ। नहीं सर, हाँ वो सुना मैं, आवाज ब्रेक हो रही है सर, समझ में नहीं आ रहा था अभी आप क्या बोल रहे हो। नहीं हाँ मैं भी ट्रेनिंग दूंगा। जी सर, मैंने AWS के बारे में भी सुना था सर, आपकी क्या राय है इस बारे में? AWS के बारे में मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, ठीक है। अभी AWS से बेटर आई थिंक अगर UI पाथ में ये करना है, गो फॉर द बेस्ट। जी सर। इससे अच्छा नहीं है। UI पाथ से ऊपर सोचना है तो Salesforce इज द बेस्ट, ठीक है, मेरे हिसाब से। इवन आई एम लर्निंग दिस, आई थिंक आफ्टर दैट मैं भी इससे कुछ क्लासेस वगैरह लेने का सोच रहा हूँ, ठीक है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी। लेकिन RPA में बहुत जॉब है, इट इज वेरी इजी टू इंटर इनटू द RPA, ठीक है, एज वेल एज Salesforce में भी, ठीक है। कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है ये दोनों जहाँ पे, और पैसे मिलेगा अच्छे दोनों जगह पे, ठीक है। एनीवन हैव एनी अदर क्वेश्चन? अरे भाई सर मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे। एक्चुअली मैंने BBA किया है, बट आई एम वर्किंग नाउ इन कॉग्निजेंट। मैं अभी फिलवक्त हेल्थ केयर में काम कर रहा हूँ। अरे कॉग्निजेंट में तो RPA का बहुत जॉब है यार। आप IGP के लिए ये कर सकते हो। यू आर एलिजिबल हो क्या? 1.5 ईयर हो गया आपका कॉग्निजेंट में? 5 years हो गया है मेरा। तो फिर आप RPA सीख के IGP में के लिए ट्राई करो। कॉग्निजेंट में तो RPA भर गया है पूरा। उनके पोर्टल पे आप अगर चेक करोगे तो बहुत जॉब है RPA का। ओके, मैं अभी हेल्थ केयर में हूँ फिलवक्त BPO में। तो मैं UI पाथ इससे पहले भी मतलब 2009 में 19 में क्लास अटेंड किया था, बट उतना मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मतलब कि आई कैन पिच इनटू UI पाथ। तो ठीक है, बेसिकली यहाँ पे अगर हम ज्वाइन करेंगे देन आप ये समझ लो कि आपको 60 डेज देना होगा, ठीक है, तभी कुछ उपाय है, ठीक है। अगर मैं, क्योंकि ऐसे मैं पढ़ाता नहीं हूँ कि आधा आधा पढ़ा के चला जाता है, वही नहीं, क्योंकि 30 to 35 डेज वाला वो मतलब नहीं। ओके, उससे नहीं आपको भी फायदा नहीं होगा, मुझे भी गिल्टी होगा। जैसे पिछले बैच में आरिफ भाई वॉज देयर, ठीक है, तो 6 लोग थे, 6 में से मेरा 5 लोगों का अभी जॉब लग गया है, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है। एक बंदा इंफोसिस में ज्वाइन हो गया, एक HCL में ज्वाइन हुआ, एक मुंबई की कौन सी कंपनी वहां पे लगा, और एक बंदा मतलब मेरे ही कंपनी में, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी तो मैंने उसको 2 को हायर किया था, और एक लड़की थी वो एक्सेंचर में हायर थी, और एक को नहीं लगा जॉब। तो आई थिंक तो वो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, अगर कोई ये
किसी को जॉब वगैरह लगता है। एग्जैक्टली ठीक है, थैंक यू। So any other question, guys? Excuse me, over here. Other than UiPath development, what are other subfields that a person can go into RPA? Other than UiPath, मतलब अच्छा UiPath से अच्छा कौन है ये पूछ रहे हो क्या? Yeah, within RPA, I mean. Within RPA, all are good. Blue Prism is good, Automation Anywhere is good, and UiPath is good. कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि UiPath से अच्छा Blue Prism है, ठीक है, लेकिन या फिर Automation Anywhere है, ठीक है, all are good. These three technology is top. आपको जो सीखना चाहते हो you can learn, ठीक है, अभी तीनों अच्छा टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अगर कोफेक्स, वर्कफ्यूजन, नाइस और ये सब में जाते हैं, ओपनस्टैम्प, कायरन है, लिक्स है, तो दैट विल नॉट वर्क। जब भी सीखना है तो यही तीन टेक्नोलॉजी सीखना है। आई यूज्ड टू मतलब वर्क ऑन ब्लू प्रिज्म, ठीक है, तो आई थिंक आरिफ भाई को मैंने ट्रेनिंग भी दिया था इन 2018 में ब्लू प्रिज्म पे, पर अभी ब्लू प्रिज्म में लॉजिक ज्यादा लगाना होता है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने ब्लू प्रिज्म को छोड़ दिया है। तो अभी के इसमें ऑटोमेशन एनीवेयर एंड यूआईपाथ है, ठीक है, इतना समझो। ब्लू प्रिज्म में लॉजिक आपको ज्यादा, आप ये आपका बैकग्राउंड क्या है, कोडिंग बैकग्राउंड से हो आप? Yes, I have done my MCA. So. Yeah, what you did? MCA. अच्छा, तो आपको कोडिंग वगैरह पूरा जमता है? Yes. हाँ, तो फिर तो कुछ भी आप सीख सकते हो, कोई भी इशू नहीं। You can choose any of the technology, ठीक है, either UiPath, Automation Anywhere and Thank you. Any other question? So what is your fees? What is? Fees sir आपकी? I think management will decide. So Arif bhai is there, so he will let you know each and everything. Arif bhai, You can ping me separately. I will let you know. ठीक है, I think we are done. तो मैं ये कर रहा हूँ। आरिफ भाई, can we get your contact details? Yes, I'm just sending on a chat. Arif bhai, please. Yes, you are audible. I think he is sending his contact details. साहिब भाई, तो I think we are done. तो ये एंड करता हूँ मैं। साहिब भाई is there? Saib bhai, please text Arif bhai's number or your number. Yeah, Hamid bhai, can you just on your screen, can you just text my number, because on the chat it is not going through. आप एक ग्रुप बना दीजिए ना, उसमें ये कीजिए ना। हाँ, टेल मी योर नंबर। Yeah, 8123. Can you just text my number? 8123 321 238 238. Can you just repeat? Sir, I am testing this number in video chat box. Yes, that's right. Okay, right sir. ठीक, Okay. बट बी श्योर दैट ये यहाँ पे जो मैंने ड्यूरेशन दिया है उतना ही, उससे कम के लिए मत देखो, और आप ऐसा इंस्टीट्यूट मत ज्वाइन करो जो कि बोल रहे हैं आपको। हर जगह पे आप अगर कहीं भी इंस्टीट्यूट जाते हो तो 30 to 35 डेज के लिए वो बताते हैं, ठीक है, तो वो सब धोखा है। और कोई भी अगर आपको कहता है कि रियल टाइम प्रोजेक्ट हम दिखाएंगे, तो कभी मत उनके पास जाओ, क्योंकि एक सर्वर की बहुत कॉस्ट होती है और किसी की इतनी ताकत नहीं है कि वो रियल टाइम प्रोजेक्ट दिखा सके, ठीक है, तो वो सब सिर्फ ट्रैप करने का तरीका है, ठीक है, तो वो सब नहीं बता पाएंगे कोई भी रियल टाइम प्रोजेक्ट का नॉलेज। जहाँ मैं आपको सैंपल प्रोजेक्ट दूंगा, बिल्कुल उसका डमी बना के दे दूंगा, ये सब कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई आपको ये बोलता है कि वी विल शो यू मतलब रियल टाइम प्रोजेक्ट, मैं भी जब कर रहा था तो ऐसे ही मैं 2 इंस्टीट्यूट में फंस चुका, तो उसके बातों में मत आओ। 30 से 35 दिन का कोर्स पे मत जाओ, ठीक है। जॉब असिस्टेंट वगैरह जो है वो बोलेंगे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो दैट इज नॉट राइट, ठीक है। रियल टाइम प्रोजेक्ट कोई दिखा नहीं सकता है, ठीक है, वो उस पर प्लीज मत ध्यान फोकस करो। और अगर सीखना है तो 55 to 60 डेज उतना लगेगा ही, उससे कम नहीं लगेगा। तो वो पूरा प्लान होकर के माइंड मेकअप करके ज्वाइन करो, ठीक है। आरिफ भाई, सर मुझे क्वेरी थी आपके लिए रिगार्डिंग। हेलो। हाँ सर बेसिकली आरपीए यूआईपाथ में 3 टाइप के ऑटोमेशन है ना, एक आरपीए एक है, आरपीए में 3 टाइप के ऑटोमेशन है, एक यूआईपाथ है और कोई और 2 है ना सर? देखो, आरपीए के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। आरपीए एक टेक्नोलॉजी है, समझ लो। अंडर आरपीए देयर आर डिफरेंट,
ब्लू प्रिज्म है, ऑटोमेशन एनीवेयर है, यूआई पाथ है, ओपिक्स है, ओपन स्पैम है, वर्क फ्यूजन है, लिंक्स है एंड अदर है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं। इसमें जो पॉपुलर है ब्लू प्रिज्म है, ऑटोमेशन एनीवेयर है, यूआई पाथ है। ब्लू प्रिज्म का मार्केट 2019 तक बहुत हाई था, कोई उनको बराबरी नहीं कर पा रहा था, लेकिन एकाएक वो निकल गया मार्केट से। अभी भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जॉब नहीं है, लेकिन लेस जॉब है एज कम्पेयर टू यूआई पाथ एंड ऑटोमेशन। ठीक है, यूआई पाथ एंड ऑटोमेशन बिल्कुल भी सिमिलर है। अगर कुछ एक भी हम सीख लेते हैं देन वी कैन यूज, हम दो सीख लेते हैं। और ये ट्राई करो कि पैरेलली दो टेक्नोलॉजी दो ये सीखने का। हम अगर यूआई पाथ अगर हम सीख गए तो मतलब यूट्यूब वगैरह करके लॉजिक तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, सेम हम ऑटोमेशन करके भी हम अपना आगे दे सकते हैं। दिस थिंग एवरीथिंग आई डिस्कस विल जॉइन इन क्लास। ठीक है जी सर। ठीक है, चलिए देन आई एम डन, तो आई एम लिविंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एनीथिंग इज देयर तो यू कैन कांटेक्ट आरिफ भाई। Yeah, you can contact me. ओके, अल्लाह हाफिज, बाय एवरीवन, टेक केयर। अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज। Hello, hello, यस 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 sir. I can't able to click add to cart button in Amazon using click option. व्हाट इज Sir, today I was practicing in UiPath, but in Amazon I want to press add to cart button, but it is not performing that. हाँ, तो वो अब क्रोम से अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, वी हैव डिफरेंट क्लिक। अगर हम यहाँ पे क्लिक पे जाएंगे, अच्छा मैंने स्टूडियो बंद कर दिया, अब क्लिक पे क्लिक करो, क्लिक इमेज इज देयर, डबल क्लिक इज देयर, और बहुत सारा क्लिक आएगा। एक दूसरा चीज क्या है, क्लिक के अलावा आप अभी अगर वो काम नहीं कर रहा है, अमेजोन ने इस पे काम किया है। ठीक है, वही तो अब इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाओ, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी अपना ऑटोमेशन नहीं चल रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट एज पे करो, माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी नहीं कर रहा है तो ये फायरफॉक्स वगैरह पे करो। क्रोम पे आप शायद आई थिंक ट्राई कर रहे हो, क्रोम पे उन्होंने मतलब वहां पे उनका ऑटोमेशन ये वर्क नहीं करता है। इससे पहले भी बहुत सारी वेबसाइट थी, जैसे कि पार्सल मंकी करके एक वेबसाइट थी, और फॉरेक्स एक्सचेंज के लिए कन्वर्टर कौन सी थी, मतलब ऐसी फॉरेक्स का भी वो जो था उनको भी डिसेबल कर दिया ना भाई, उनको भी उन्होंने बंद कर दिया है अपनी तरफ से, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेशन हो रहा है। तो क्लाइंट जब भी आपको देगा, ठीक है, कोई भी वेबसाइट ऑटोमेट करने, तो उसका उसके पास इस तरह का इंटरफेस परमिशन पॉलिसी उसका आपको ओपन करके देगा, पूरा तैयार करके देगा। ठीक है, उसके लिए आपको ये नहीं करना। अब अमेजोन में होता था और ये फ्लिपकार्ट में होता, फ्लैश से लोग सब ने आरपीए सीख लिया है, या आरपीए के अलावा भी बहुत सारा चीज है, AIML है, वहां से भी लूट ले रहे हैं। तो उन लोगों को भी तो पता चला है नहीं सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो वो तो कुछ करेंगे ही ना। फेसबुक है, IRCTC है, तो एन नंबर ऑफ थिंग्स है। ठीक है, हमने क्या किया, IRCTC पे अपना मतलब जैसे मैंने एक्सेल में सबका डिटेल डाल दिया है, और उसके बाद मैंने क्या किया, मतलब जाके 10 बजेगा अपने आप बोर्ड मेरा टिकट करेगा, धर 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 नाम डाला, टिकट काटा होगा। तो अभी वो तो कुछ करेंगे ना, उसके लिए आप देखो कि अभी वो क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, ये सब पूछते हैं, तो दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं आंसर के लिए, ये माइनस ये क्या होगा, ठीक है, आई एम नॉट रोबोट, ये सब देना पड़ता है। तो ये है इसका मतलब डिसएडवांटेज कह सकते हैं और एडवांटेज। अगर वो सब लोग छोड़ देंगे तो यहाँ पे सब कुछ बोर्ड ही कर देगा। राइट भाई, I think you can continue on a separate forum. So I think online. We'll just disconnect now. ठीक है, थैंक यू एवरीवन, Thank you guys. बाय।